Hello students. Today we will see new chapter 3, which is file handling. File handling is very important topic of your syllabus because uh, this portion is coming in your examination, and also this topic you can use to make a project. Okay, so you're requested to learn this chapter very carefully and efficiently. This is the very important topic. So let us start file handling. You know what is file? So file is a collection of the data. This file can be stored in your memory permanently. ये फाइल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई वी यूज़ फाइल. तो हम लोग फाइल क्यों यूज़ करते हैं? फाइल को यूज़ करने का जो पर्पज़ वो ये है कि अभी तक हम लोग ने जितने भी प्रोग्राम बनाए और जब हम लोग उसको रन करते थे तो डेटा को बार बार हमको इनपुट करना पड़ता था. वो जो प्रोग्राम था वो डेटा को प्रोसेस करता था, उसका आउटपुट प्रोड्यूस करता था, उसके बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद होने के बाद में वो डेटा चला जाता था. वो डेटा स्टोर नहीं होता था. फिर से उस प्रोग्राम को हम लोग रन करते थे, फिर से उस प्रोग्राम में डेटा को इनपुट करते थे, प्रोग्राम में प्रोसेसिंग होती थी, फिर उसका आउटपुट आता था, फिर चला जाता था. कहने का मतलब ये है कि डेटा स्टोर नहीं होता था. उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सके. अभी तक प्रॉब्लम ये होती थी कि हम लोग डेटा को इनपुट करते थे लेकिन वो स्टोर नहीं होता था. लेकिन अब हम लोग वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो डेटा को स्टोर करेगा और वो होता है फाइल. तो फाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में भी आता है और इसका यूज़ करके आप लोग प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हो. अब फाइल हम लोग क्यों बनाते हैं? तो जैसे कि आपको मालूम है कि इट कैन स्टोर डेटा परमानेंटली एज लॉन्ग एज यूज़र वांट. द डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली एज लॉन्ग एज यूज़र वांट. Second point, data stored in a file can be used anywhere, anytime in the program if required. We don't need to put the data again and again and again and again. Whenever we want to access the data, we can access the data from that file. Okay? It can be modified whenever required. Suppose if we want to change the data, we can modify the data anytime by using the program. Same data is not required to be entered again and again. Okay, once the data is stored, it can be used anywhere, anytime. Then it saves times and energy required to enter data again and again. Again, while running the normal program, we need to enter the data again and again. But once the data is stored in the file, so same the data can be used again and again, anywhere, anytime. So these are the importance of the file. Okay. Now, data files. The files can be of different types. Here we will see text file and binary file. See the text file. Text file is a file which stores the data in text format. See here, text file are structured as a sequence of lines where each line includes a sequence of characters. It means that text file is a file which stores the data in text form. Okay. And binary file, it will store the data in bits form. Okay, in the form of 0 and 1. Okay. There are some advantages of text file and binary file, and since the binary file is very easy but it takes too much time to be processed, but the binary file is a little bit complex but it is very fast to read and write. Okay, so some advantages of text file and disadvantage of the text file, and some advantage and disadvantage of the
binary file. So you can use any type of file as per your convenience, as per your requirement. Okay. Now we will see the difference between text file and binary file. Text file stores information in ASCII format, but binary file stores the data in form of binary bytes, that is 0 and 1. Then text file, each line of the text is terminated with a special character known as EOL, means end of line. Text file contains some special characters like end of line. Some delimiters are there in the text file. It required to be processed whenever we read or write the data. But in case of binary file, no such delimiter are used in case of binary file. Okay, as I told you that some internal translation takes place when this EOL character is read or write. मतलब टेक्स्ट फाइल जब हम लोग या तो हम लोग रीड करते हैं या हम लोग टेक्स्ट फाइल या तो हम लोग रीड करते हैं या फिर हम लोग राइट करते हैं, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसका कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी होता है. इस कन्वर्जन के लिए समय लगता है, इसलिए टेक्स्ट फाइल जो है वो रीड और राइट करने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा कोई भी स्पेशल डेलिमिटर्स यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए इसका प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाता है. टेक्स्ट फाइल में कन्वर्जन होता है, इसलिए इट इज़ स्लोअर देन बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल में इस तरह कोई भी कन्वर्जन नहीं होता, इसलिए इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम टू बी प्रोसेस्ड. ओके, नाउ we will see opening and closing a file. How to open the file, how to close the file, we will see in the syntax, we will see in the example. Okay, see, opening a file, we will need one function that is called as open function. Okay, open function will need two parameters like the name of the file and the mode. Mode means there are different types of modes which can be used to file the which can be used to open the file. Okay, and we will use different modes for the different purpose. Okay, these are the modes. See here, in case of text file we will use R mode. R mode is used to open the file in read mode. Okay, see this text file mode. Okay, these are the various mode used for the text file, and these are the various modes for opening the binary file. Okay, R is used for opening the file in read mode. W is used to open the file in write mode. A is used to open the file in append mode. Append mode means what? Append mode is used to add more data in an existing file. Okay, we will see the use of this append mode later on. Okay, then R plus. R plus mode is used to read and write file simultaneously. W plus is used to open the file in write and read mode simultaneously. A mode is used to read and write append new data in the file simultaneously. Okay, and X mode is used to create the specified file, and it will return error if the file exists. If you are using X mode, it will create file. Okay, and if the file is exist, it will return error. So we will see this all these modes later on. Okay, now in case of binary file mode, we use extra character B. B is for binary file. इन केस ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट मोड में हम लोग RWA यूज़ कर रहे हैं रीड राइट ए अपेंड के लिए. उसी तरह से हम लोग बाइनरी फाइल में सिर्फ हम लोग वही चीज़ यूज़ करते हैं रीड राइट ए, लेकिन उसके साथ में हम लोग बी कैरेक्टर को यूज़ करते हैं बाइनरी फाइल में, बाइनरी फाइल को ऑपरेट करने के लिए. RB मतलब बाइनरी फाइल में रीड करने के लिए, WB मतलब बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए, AB मतलब अपेंड मोड बाइनरी फाइल में, RB प्लस मतलब रीड एंड राइट इन बाइनरी फाइल, WB प्लस मतलब राइट फाइल इन राइट एंड रीड इन बाइनरी फाइल. ठीक है, AB प्लस मतलब रीड एंड राइट अपेंड न्यू मोड इन बाइनरी फाइल, और XB मतलब इट विल क्रिएट न्यू फाइल एंड इट विल रिटर्न
एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट। ओके, तो ये सारे मोड्स हम लोग बारी बारी से यूज करेंगे इसके आगे। नाउ हमने देखा फाइल को कैसे ओपन करते हैं। देखिए, open function is used to open the file. This is the name of the file and this is the mode, means RWA. Okay, and it will be used as per our requirement. Okay, now closing a file, so close function is used to close the file. Okay, अब क्यों ना हम लोग एग्जाम्पल देख लें कि किस तरह से फाइल को ओपन करते हैं, किस तरह से हम लोग फाइल को क्लोज करते हैं, किस तरह से फाइल में हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके आगे की स्लाइड हम लोग देखते हैं, वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे टेक्स्ट फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होता है, और दीज आर द बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन ए फाइल। ओपनिंग ए फाइल, राइट डेटा इन ए फाइल, read data in a file, then modify data in a file, deleting a file. These are the various operations that can be performed in text file as well as binary file. Okay, so let me see how to open a file, how to write data in a file. Okay, now this is the comment statement, program to write data in a text file. Okay, this is our first program to write data in a text file. So f is equal to open. Open is a function that can be used to open a file. The name of file will be trial.txt. Since it is a text file, so I will put here extension txt of the file. Okay, and first time I am writing the file, first time I am creating a file, so it will be open in write mode. So I will write here w. W is what for? It is for write mode. So I am writing here comment, open function is used to open a file. Okay, then w is the mode of file used to write data in a file. Okay, now I want to enter 5 lines in a file. Okay, I want to enter 5 lines in a file, so I will use loop. मैं 5 लाइन लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक लूप लगाना चाहता हूँ, for I in range, okay, 1,5. ओके, ये लूप लगा दिया। अब मैं इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से, एंटर एनी सेंटेंस, एंटर एनी सेंटेंस। ओके, ये इनपुट हुआ। जो इनपुट हुआ है उसको मैं फाइल में राइट करना चाहता हूँ, तो कैसे राइट करेंगे? तो f.write ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, वो क्या करेगा? फाइल में राइट कर देगा। और क्या है राइट करेगा? जो अभी अभी हम लोग ने इनपुट किया है। ओके, और क्या चाहता हूं मैं कि जब भी वो लिखे तो लास्ट में क्या कर दे? वो न्यू लाइन को, नेक्स्ट लाइन वो प्रिंट कर दे, न्यू लाइन कैरेक्टर वो प्रिंट कर दे। ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो लिखे तो नया लाइन में दिखाई दे हमको आउटपुट। ओके, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ f.close। देखिए हम लोग ने क्या किया, फाइल को ओपन किया, फाइल का नाम trial.txt है और ये राइट मोड में खोल रहा है। फिर मैंने लूप लगा दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू राइट डेटा इन अ फाइल
5 टाइम्स. ओके, आई वांट टू राइट 5 सेंटेंसेस इन ए फाइल. ओके, सो यहाँ पर एंटर एनी सेंटेंस, यूज़र इनपुट करेगा, उसको हम लोग लिख देंगे, उसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे एफ डॉट राइट. और ये एफ किससे कनेक्टेड है? ट्रायल डॉट टी एक्स टी से. तो फाइल में लिख देगा, क्या लिखेगा? जो हम लोग ने एन में इनपुट किया है. और ये स्लैश एन क्या करेगा? ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है ना, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है, वो उस सेंटेंस के साथ में वहाँ पर वो लिखा जाएगा. जिससे क्या होगा कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम आप जो भी लिखेंगे वो नया लाइन में आएगा. उसके बाद फिर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया. ये हम लोग इसको रन करते हैं. तो फाइल राइट 1. ओके, राइट एनी सेंटेंस. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट फाइल. ये हुआ मेरा पहला सेंटेंस. दिस फाइल कंटेन्स सिंपल सेंटेंसेस. ओके, फाइल कैन बी modified later on. Okay, file can be deleted later on. Okay, so इसने केवल 4 लाइन ही लिया है. 4 लाइन इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग ने जो लूप लिया है वो लिया है 1 to 4, 1 to 5. यस, 1 to 5. 1 to 5 इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4. 1 माइनस लेता है वो, मतलब 4. 5 लिखा है इसलिए 4 तक लेगा. आपको मालूम है कि 4 तक लेगा, है ना, इसलिए उसने 4 सेंटेंस लिया है. ओके, चलो कोई नहीं. अब हम ये देखते हैं कि हमारा फाइल जो है वो उसमें वो सारा डेटा गया है या नहीं गया है. तो ये फाइल कहाँ पर सेव हुआ होगा? जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव होता है. और उस फाइल का नाम क्या होगा? ट्रायल डॉट टी एक्स टी. फाइल को हम लोग ओपन करके देख लें. फाइल ओपन, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं टेक्स्ट फाइल. और यहाँ पर देखिए फर्स्ट डॉट टी एक्स टी आ गया. और वहाँ पर हम लोग ने क्या इनपुट किया था? यस, सॉरी, ट्रायल डॉट टी एक्स टी था शायद हमारा फाइल. फाइल ओपन, यस, ट्रायल डॉट टी एक्स टी. फाइल ओपन, टेक्स्ट फाइल, यस, ये हमारा फाइल है ट्रायल डॉट टी एक्स टी. देखिए इसे यहाँ पर 4 सेंटेंस आ गए. दिस इज माई फर्स्ट फाइल. द फाइल कंटेन्स सिंपल सेंटेंसेस. फाइल कैन बी मॉडिफाइड लेटर ऑन. फाइल कैन बी डिलीटेड लेटर ऑन. ओके, तो इस तरह से हम लोग ने जो भी डेटा डाला है वो यहाँ पर सेव हो गया. ओके, तो ये मुझे उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा. फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लें. यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है? फाइल को ओपन किया है ट्रायल डॉट टी एक्स टी. डब्ल्यू का मतलब है कि राइट बोर्ड में खुलेगा. उस फाइल को कौन पॉइंट करेगा? तो ये एफ नाम का ऑब्जेक्ट है. ओके, अब इसी एफ नाम का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग फाइल में राइट करेंगे और फाइल को हम लोग क्लोज करेंगे. ओके, अब क्योंकि हम लोग 5 रिकॉर्ड लिखना चाहते थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1,5, लेकिन ये लेगा 4 तक, क्योंकि आपको मालूम है कि n-1 तक लेता है, इसलिए 1 से लेकर 4 लिया. हम लोग ने यहाँ पर इनपुट लिया. इनपुट लेने के बाद वो n में स्टोर हो गया. उसके बाद फिर हमने एफ डॉट राइट, इसका मतलब है कि फाइल में वो राइट करे, है ना. क्या राइट करे? जो अभी हमने इनपुट किया है वो n, और साथ में क्या करे? वो लास्ट में एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वहाँ पर लिख दे स्लैश n का यूज़ करके. तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो लिखेगा तो नया लाइन में आएगा, फिर लिखेगा तो नया लाइन में आएगा. और जब भी पूरे 4 बार लूप चलने के बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा. ओके, और इसका फिर हम लोग ने आउटपुट भी देख लिया कि हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है. ओके, अब हम ये देखते हैं कि फाइल को रीड कैसे करें. तो आइए सबसे पहले फिर हम लोग जाते हैं अपने पावर पॉइंट पे कि फाइल को रीड कैसे करते हैं. रीड द डेटा फ्रॉम फाइल. फाइल को रीड कैसे करते हैं? ये अलग अलग तरीके से हम लोग रीड करते हैं. डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. यहाँ पर हम लोग 3 तरह के फंक्शन यूज करते हैं. रीड, रीड लाइन, रीड लाइन्स. रीड फंक्शन जो है ये चाहे तो एक साथ में पूरा का पूरा डेटा को रीड कर सकता है.
या चाहे तो हम लोग इसमें एक लिमिटेशन लगा सकते हैं, रीड n बाइट्स इफ नो n इज स्पेसिफाइड रीड द एंटायर फाइल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रीड फंक्शन। रीड फंक्शन जो है ये एंटायर फाइल को रीड कर लेगा एक साथ में, लेकिन अगर हम लोग ने इसके साथ में लिमिटेशन दे दिया, अगर हम लोग ने केवल रीड लिखा तो ये पूरी फाइल को रीड कर लेगा, लेकिन अगर हम लोग ने रीड के साथ में कुछ हम लोग ने लिमिटेशन दे दिया तो केवल उतना पार्ट ही वो रीड करेगा, उतना बाइट ही वो रीड करेगा, जिसको कि हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। ओके, रीड लाइन क्या करेगा, रीड लाइन केवल एक ही लाइन को रीड करेगा, और रीड लाइंस क्या करता है कि वो लाइन बाय लाइन रीड करेगा, रीड ऑल लाइंस एंड रिटर्न ए लिस्ट, और लिस्ट फॉर्म में वो रीड करेगा। आइए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है, अब याद रखिए कि हमारा जो फाइल है वो trial.txt है। अब इसी फाइल को हम लोग रीड करेंगे। ओके, तो नया फाइल लेते हैं, प्रोग्राम टू रीड फाइल, रीड टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब f इज इक्वल टू ओपन, हमारे फाइल का नाम था trial.txt। अब हम लोग किस मोड में फाइल को खोलेंगे, तो रीड मोड में। रीड मोड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, R। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग फाइल के सारे डेटा को एक साथ में रीड करके प्रिंट करना चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फाइल के डेटा को एक साथ में रीड करके एक साथ में सारे डेटा को प्रिंट कर देंगे, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रीड फंक्शन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं n इज इक्वल टू f डॉट रीड, ये हो गया n इज इक्वल टू f डॉट रीड। ये हम लोग ने रीड कर लिया। हम लोग अब यहाँ पर करते हैं प्रिंट n और f डॉट क्लोज। देखिए प्रोग्राम टू रीड टेक्स्ट फाइल, हम लोग ने फाइल को ओपन किया trial.txt रीड मोड में। ओके, यहाँ पर मैं कमेंट डाल दूँ, R is used to read file in read mode। फिर हम लोग ने क्या किया, फाइल के डेटा को रीड किया, फाइल के डेटा को रीड किया, रीड करने के बाद में उसको हम लोग ने n में डाला और उसको हम लोग ने प्रिंट कर दिया, प्रिंट n। ठीक है, इसने क्या किया, एक साथ में इसको, अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, फाइल रीड 1। ओके, देखिए इसने सारे डेटा को एक साथ में रीड करके प्रिंट कर दिया। तो रीड फंक्शन कुछ इस तरह से है, एक बार फिर से समझे। f इज इक्वल टू ओपन trial.txt R is used to read the file in read mode, R is used to open the file in read mode। अब ये फंक्शन क्या करेगा, रीड करेगा, कहाँ से, f से, और f किससे जुड़ा हुआ है, trial.txt से। फिर उसने जो भी रीड किया उसको n में डाल दिया, फिर हम लोग ने n को प्रिंट कर दिया, तो सारा का सारा कंटेंट प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ने फाइल को क्लोज कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट हुआ। ओके, अब हम चाहते हैं कि इस फाइल के कुछ बाइट्स को हम लोग रीड करें। मान लीजिए अब मैं इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर रहा हूँ, सेव एज फाइल रीड 10 बाइट्स। मैं केवल 10 बाइट्स रीड करना चाहता हूँ हमारे फाइल से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, n इज इक्वल टू 10 बाइट्स। तो अब देखिए ये कितना रीड करता है, देखिए दिस इज माई। अब जरा काउंट करिए इसको, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, n इज इक्वल टू f डॉट रीड और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 10। तो 10 क्या करेगा, 10 बाइट्स ही रीड करेगा। f डॉट रीड, रीड मतलब
रीड करेगा कितने बाइट्स, 10 बाइट्स। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 स्पेस 8 9 10। तो देखिए 10 बाइट ही उसने प्रिंट किया है, दिस इज माई ही प्रिंट किया है, जबकि मैं शायद हम लोगों ने लिखा था दिस इज माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, तो एफ डॉट रीड 10 इसका मतलब ये है कि इट विल रीड 10 बाइट्स फ्रॉम अ फाइल। मैं यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ आपके यूज के लिए, टू इट विल रीड 10 बाइट्स फ्रॉम अ फाइल। ओके, तो इस तरह से हम लोग फाइल को रीड करते हैं रीड फंक्शन से। अब रीड लाइन, इसी फाइल को हम लोग रीड लाइन से हम लोग कैसे रीड करते हैं, तो आइए इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे नाम से सेव एज कर देता हूँ और थोड़ा सा फिर हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। तो सेव एज फाइल रीड लाइन्स, ओके, रीड लाइन 1। ओके, प्रोग्राम वही है, प्रोग्राम टू रीड 1 लाइन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, प्रोग्राम टू रीड 1 लाइन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ओके, तो वही यूज होगा, एफ इज इक्वल टू ओपन ट्रायल डॉट टी एक्स टी, फिर से रीड मोड में। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू एफ रीड लाइन, LINE, ओके, रीड लाइन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इट विल रीड 1 लाइन ओनली फ्रॉम अ फाइल। ओके, इट विल रीड 1 लाइन फ्रॉम अ फाइल और फिर प्रिंट कर देगा। F5 करिए, देखिए दिस इज माई फर्स्ट फाइल, इसने केवल पहला लाइन ही प्रिंट किया, बाकी फिर वो निकल गया है। तो हम लोग ने देखा रीड, जो पूरे फाइल के कंटेंट को रीड कर रहा है। फिर हम लोग ने देखा रीड ब्रैकेट में 10, इसका मतलब है कि 10 बाइट्स को वो रीड करेगा। फिर हम लोग ने देखा रीड लाइन, जो केवल एक ही लाइन को रीड करता है। अब हम लोग देखते हैं रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है, अब इसी प्रोग्राम को मैं सेव एज कर रहा हूं, रीड लाइन्स 1। इसी प्रोग्राम को रीड करने के बाद इसी प्रोग्राम को हम लोग मॉडिफाई करते हैं, वही एफ इज इक्वल टू ओपन ट्रायल डॉट टी एक्स टी आर, फिर एफ एन इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन। ओके, फिर एन इज इक्वल टू रीड लाइन। अब लाइन की जगह लाइन्स आ जाएगा, एफ डॉट रीड लाइन्स। ओके, और इसको फिर हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, इट विल रीड ऑल लाइन्स फ्रॉम अ फाइल एंड प्रिंट इन ए लिस्ट फॉर्म। वो क्या करेगा, सारे लाइन को प्रिंट करेगा, सारे लाइन को रीड करके वो लिस्ट के फॉर्म में वो प्रिंट कर देगा। आइए देखते हैं, देखिए आपको पहले दिख रहा होगा कि नए लाइन में वो प्रिंट ले रहा था, दिस इज माई फर्स्ट फाइल, फाइल कंटेन सिंपल सेंटेंसेस, फाइल कैन बी मॉडिफाइड लेटर ऑन, फाइल कैन बी डिलीटेड लेटर ऑन, वगैरह वगैरह। वो 4 लाइन में आ रहे थे, जबकि उन्होंने क्या किया, अब रेड लाइन्स ने क्या किया है, रीड लाइन्स ने लाइन बाय लाइन तो रीड किया है, लेकिन उसको लिस्ट फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दिया है। तो इस लिस्ट को हम लोग बाद में प्रोसेस कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये फाइल की प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी, किस तरह से फाइल को बनाते हैं, किस तरह से फाइल को हम लोग रीड करते हैं, है ना, और किस तरह से फाइल को अलग अलग तरीके से रीड करते हैं, वो हमने अभी देखा है। तो देखिए रीड फंक्शन रीड n बाइट्स
अगर कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है तो इट विल रीड एंटायर फाइल, रीड लाइन इट विल रीड ओनली वन लाइन फ्रॉम अ फाइल, रीड लाइन्स रीड ऑल लाइन्स बट रिटर्न ए लिस्ट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को फाइल बनाते कैसे हैं, फाइल में डेटा को कैसे लिखते हैं, फाइल को रीड कैसे करते हैं, फाइल को रीड करने के बाद में उसको अलग अलग तरीके से कैसे प्रिंट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और इस सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बार बार देखिए। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग फाइल के डिटेल ऑपरेशन को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ने टेक्स्ट फाइल के कुछ ही प्रोग्राम को देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्स्ट फाइल को और डीप से देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।